Hello guys, how are you? Today we will study about Gattermann aldehyde synthesis. What is Gattermann aldehyde synthesis? The formation of salicyl aldehyde from phenol, hydrogen chloride and hydrogen cyanide. Presence of aluminium trichlorides are produced most important organic compound. This name salicyl aldehyde. Let's check this reaction. Okay, firstly, phenol react with HCl, HCN, presence of anhydrous and hydrous aluminium trichlorides. Okay, formation of salicyl aldehyde OH and CHO. Salicyl aldehyde. अंडरस्टूड। इस रिएक्शन को हम डीपली स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि ये रिएक्शन जो है हम जो है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में भी हम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, इजी आपको हो जाएगा स्टडी करना। देखिए, फर्स्टली हम बात करते हैं यहाँ पर, ये दो हमारे पास में रिएजेंट है HCl एंड HC ट्रिपल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड and hydrogen cyanide, hydrogen cyanide. Understood? React with each other. Presence of anhydrous aluminium chlorides form this carbon more electronegative compared to this hydrogen, sharing electron except and partially positive charge and partially negative charge. Understood? Nitrogen atoms is a more negative atoms compared to carbon. So then this electron pair accept nitrogen, partially positive charge and partially negative charge. Understood? This bond break. This bond break means negative chlorides reach carbon atoms and hydrogen reach nitrogen atoms. Okay, so then C double bond and H and Cl and H. This intermediate compound format. Understood? Second step, phenol. This carbon, this hydrogen presence in carbon. Okay. Next, carbon and nitrogen's compound chlorine and hydrogen H. Understood? Chlorine electron pair accept and free form of negative bond break. ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। और यहाँ से जो है कार्बन जो है मोर नेगेटिव एंड कंपेयर टू हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट. डबल बॉन्ड इज अ एसिडिक नेचर इन कंपेयर टू फर्स्ट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड. ओके, तो दिस बॉन्ड यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से H और Cl क्या होंगे, बाहर निकलेंगे और एक कंपाउंड बनेगा OH and C double bond and HCH. Understood? And plus HCl का formation. Second step, phenol intermediate compounds C double bond and HH. Presence of water hydrolysis. Presence of water hydrolysis. Understood? And these compounds, ammonia is passed out
in this compound. Okay, formation of OH and CHO group attached in phenol and NH3 ammonia is a eliminate form of gas. Understood? This name salicylaldehyde. Understood? Means फिनॉल जो है HCl से और HCN से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा. प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस के प्रेजेंस में एल्यूमिनियम क्लोराइड के जो एक अच्छा क्या होता है, कैटलिस्ट होता है इसके प्रेजेंस में. और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है. हमने इसको जो है इजीली चेक आउट करने के लिए जो है हमने क्या करा है, इस स्टेप में लिखा है. फर्स्टली HCl HCN की रिएक्शन होगी तो इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है. ठीक है, फिर ये इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या करेगा, अटैक करेगा किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर. ठीक है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल के रूप में. ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा. जब Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा तो इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो एज ए ये इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा. और जो बेंजीन रिंग है उसका जो H है, H आउट होगा अपना इलेक्ट्रॉन देकर. ठीक है, तो इस पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा. जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल बना और ये न्यूक्लियोफाइल बना. तो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन है. तो ये C वाला कंपाउंड उस पे अटैक करके जो है एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा. फिर करने के बाद में क्या बनाएगा, वो उसका वाटर हाइड्रोलिसिस करेंगे और क्या बनेगा हमारे को, सैलिसिल एल्डिहाइड. आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस इक्वेशन. ओके, गाइस नेक्स्ट रिएक्शन है phenolphthalein from phthalic anhydride. Let's see, check this equation. Firstly, phthalic anhydride C double bond O, C double bond O. This compound known as phthalic anhydride. Phthalic anhydride. Understood? React with two molecules of phenol. Two molecules of phenol. Two molecules of phenols and presence of concentrate H2SO4. Presence of concentrate H2SO4. Formation of phenolphthalein. This water molecules eliminate. This water molecules eliminate and formation of new compound. This compound known as phenolphthalein. Understood? Again repeat. Phthalic anhydride react with phenol, presence of concentrate sulfuric acid, formation of a most important compound phenolphthalein. Understood? This reaction phenolphthalein. गाइस नेक्स्ट जो है आपको ये चेक करना है कि फिनॉल आर मोर एसिडिक नेचर कंपेयर टू अल्कोहल. ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है कि हम बताना रहता है कि जो है फिनॉल जो होते हैं मोर एसिडिक इन नेचर कंपेयर टू अल्कोहल. तो हमको उसको जो एक्सप्लेन करना है, प्रूव करना है कि वाकई में ही जो है फिनॉल जो है मोर एसिडिक इन नेचर कंपेयर टू अल्कोहल. लेट्स सी, check these equations and formulas. ओके, फर्स्टली हम बात करेंगे यहाँ पर, हम जो है दो पॉइंट से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो है मोर एसिडिक इन नेचर फिनॉल. ठीक है,
तो फर्स्टली हम बात करेंगे यहाँ पर रेजोनेंस की बात करेंगे, ठीक है, और है एक होता है अगला नेक्स्ट पॉइंट होता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हम 2 पॉइंट से क्लियर कर देंगे आपको कि किस प्रकार से होता है। गाइस जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है फिनोल्स आर मोर एसिडिक नेचर कंपेयर टू अल्कोहल। हमें यह प्रूव करना है कि जो है फिनोल इज अ मोर एसिडिक इन नेचर कंपेयर टू अल्कोहल, मतलब अल्कोहल की तुलना में फिनोल क्या होते हैं, मोर एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो हमको यहाँ पर प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो हम जो है 2 पॉइंट से इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि जो है फिनोल वाकई में ही जो है क्या होते हैं, मोर एसिडिक होते हैं कंपेयर टू अल्कोहल। हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों की, लेकिन फिनोल जो है वीक एसिड होता है, लेकिन कंपेयरिंग करेंगे अपन अल्कोहल से तो अल्कोहल की तुलना में क्या होगा, वो मतलब मोर क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे रेजोनेंस। फर्स्टली हम रेजोनेंस से प्रूफ करेंगे आपको कि जो है कि ये मोर एसिडिक नेचर का होता है, और सेकंड होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज अ एसिडिक नेचर कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेट्स सी, फर्स्टली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो फिनोल होता है वो किस में बनता है, फिनोऑक्साइड आयन के अंदर बनता है। फिनोल से क्या बनता है, फिनोऑक्साइड आयन। ये क्या बना है, फिनोऑक्साइड आयन, अंडरस्टूड। तो फिनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। मींस यहाँ पर यह है कि एसिडिक नेचर के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, H पॉजिटिव को क्या करना चाहिए, लॉस, है ना, मतलब गिवन H आयन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर गिव्स H पॉजिटिव आयन, ओके। तो यहाँ पर जो है फिनोल ने क्या करा, इजीली जो है H को डोनेट कर दिया है प्रोटॉन के फॉर्मेशन के रूप में, ठीक है। उससे हमारे पास में अल्कोहल है, अल्कोहल से क्या बना, इथोऑक्साइड, इथोऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। मींस यहाँ पर है कि अल्कोहल से भी जो है H क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, बाहर निकल रहा है, लेकिन वो उतनी शीघ्रता से, वो उतनी फास्ट नहीं निकल पाता जितनी फास्ट जो है फिनोल से H रिलीज होता है, अंडरस्टूड। तो फर्स्टली हम बात कर सकते हैं कि जो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस जो है स्टेबिलिटी को क्या करता है, परफॉर्म करता है, मतलब जिसके पास जितनी स्टेबिलिटी होती है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड के फॉर्म में आता है। तो फिनोल की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो फिनोल की जो है रेजोनेंस प्रेजेंस होता है। रेजोनेंस के कारण जो है क्या होता है, वो स्टेबिलिटी को क्या करता है, परफॉर्म कर लेता है। मींस यहाँ पर ये है कि रेजोनेंस मींस यहाँ पर ये होता है कि एक मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर का परफॉर्म करना। तो यहाँ पर जो हमारे पास में जो फिनोल है, तो फिनोल क्या कर रहा है, फिनोल के अंदर जो है रिंग के अंदर जो है क्या हो रहा है, रिंग के अंदर चार्ज क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है और मूव मोशन कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ देखा है कि यहाँ का जो लोन पेयर है तो यहाँ पर आ गया है, ये लोन यहाँ का जो पेयर है यहाँ पर आ गया है। इस तरह से जो चार्ज हो रहा है, ये चार्ज पूरे रिंग के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसका मीन्स यहाँ पर ये है कि जब भी रेजोनेंस होता है तो चार्ज क्या करता है, मूव करता है, जिससे क्या होती है, कंपाउंड स्टेबल महसूस करता है, ठीक है। तो कंपाउंड ने क्या करा, स्टेबिलिटी महसूस किया, एक तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास में जो स्ट्रक्चर बना है वो है इसका फिनोऑक्साइड आयन का। ये फिनोल का क्या है, रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पर हो रहा है फिनोऑक्साइड का रेजोनेंस, ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आता है, किसके ऊपर, फिनोल के ऊपर। यहाँ पर जो है फिनोल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिंग के अंदर माइनस चार्ज रहेगा, ठीक है। तो कंपेयर टू जब करेंगे अपन, तो फिनोल की कंपेयर में फिनोऑक्साइड इज अ मोर स्टेबल। मींस यहाँ पर ये है कि फिनोल में भी रेजोनेंस हो रहा है, और जो रेजोनेंस जो है फिनोऑक्साइड आयन में भी हो रहा है। तो फिनोल भी स्टेबिलिटी को परफॉर्म करता है, उसी प्रकार से जो है फिनोऑक्साइड आयन भी जो है स्टेबिलिटी को परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जब हम दोनों की तुलना करेंगे, जब कंपेयर करेंगे, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो होती है फिनोऑक्साइड की आयन होती है। यहाँ पर जो है चार्ज सेपरेशन हो जा रहा है, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन हो जा रहा है, तो स्टेबिलिटी में कमी आ रही है। लेकिन यहाँ पर वन चार्ज जो है पूरे रिंग में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और जिसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो वो आयंस जो है क्या होता है, मोर एसिडिक कैरेक्टर का हो जाता है। इसलिए जो है
फिनोल क्या हो रहा है, मोर एसिडिक नेचर हो रहा है, क्योंकि ये फिनोल से जो है H क्या होगा, रिलीज होगा, तो क्या बनेगा, फिनोऑक्साइड आयन बनेगा। और जो फिनोऑक्साइड आयन जो है क्या है, मोर क्या है कंपेयर टू एल्कोहल्स, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। H को दान करने के बाद में अपने आप को बहुत ज्यादा स्थायी समझने लगेगा, इसलिए जो है जल्दी से क्या करेगा, H को रिलीज कर देगा। लेकिन इसके अंदर जो है एल्कोहल क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, उसके अंदर जो है रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं होता है। किसके अंदर, अल्काइल ग्रुप के अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं होता है, और ये जो है हकल्स रूल्स को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये जो है लेस स्टेबल रहेगा। इससे तो आयोनाइजेशन तो होगा, उसका H रिमूव तो होगा, लेकिन बहुत समय बाद होगा, इसलिए जो है ये वीक एसिड में प्रेजेंट हो जाएगा। अंडरस्टूड। सेकेंड हमारा पॉइंट था sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मींस यहाँ पर यह है कि यदि आपके पास में जो है ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंस हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो बिटवीन टू कार्बन एटम्स एंड अदर कार्बन एटम्स, तो मोस्टली जो है 3 बॉन्ड जिनमें प्रेजेंस होता है मोर एसिडिक नेचर का होता है, मोर एसिडिक नेचर। कौन, ट्रिपल बॉन्ड भी जो है एसिडिक नेचर का होता है। फिर जो है एसिडिक नेचर का ये भी होगा, एसिडिक नेचर का होगा, और ये जो है लेस एसिडिक नेचर का होगा। मींस यहाँ पर है कि जो डबल बॉन्ड होते हैं वो sp2 हाइब्रिड होते हैं, और जो सिंगल बॉन्ड होते हैं sp3 हाइब्रिड होते हैं। तो sp2 हाइब्रिड इज अ मोर एसिडिक कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ से ये मालूम पड़ता है हमारे को कि जब रेजोनेंस हो रहा है, किसमें हो रहा है, रिंग के अंदर हो रहा है, तो रिंग में क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसके अंदर जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और एथिल अल्कोहल के पास में जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन है, उसका जो है एसिडिक नेचर जो है sp2 की तुलना में क्या होती है, कम होती है। तो ये प्रूफ कर दे हो जाता है कि sp3 जो कंपाउंड होते हैं लेस होता है एसिडिक नेचर का, और जो sp2 होता है तो क्या होता है, मोर एसिडिक इन नेचर। अंडरस्टूड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। तो आपको 2 पॉइंट को लेके चलना है इसके अंदर। आपको फर्स्टली बताना है रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट को परफॉर्म करना है, तो वो रिंग के अंदर परफॉर्म करेगा वो, ठीक है। तो 2 हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं हमने यहाँ, एक फिनोल का है, फिनोल के अंदर भी रेजोनेंस हो रहा है, और फिनोऑक्साइड के आयन के अंदर भी रेजोनेंस है। आई होप गुड आंसर।